Eric Ten Hag is gone, and with him, gone the possibility of knowing what was the plan. Because every time our team struggled, and every time the news reporters asked him, "Ki how you gonna improve this? How you gonna come out on top after this result?" He always said we stick to the plan, and till this date we don't know what was the plan. But on the serious note, another manager has gone, and some of the players who have been part of so many downfalls of this vicious cycle still remains at the club. And I'm talking about Marcus Rashford and Luke Shaw. Eric Ten Hag is the most successful manager alongside Jose Mourinho post Sir Alex Ferguson era. In terms of trophies, अगर हम बात करें यहाँ पर, Jose won us the Community Shield, he won us the Europa League and the Carabao Cup. Then came Eric Ten Hag and he won us the Carabao Cup and ended our trophy drought of 6 years. And then in the next season, he defeated Man City in the FA Cup final. Yes, everything was not rosy, everything was not perfect under Eric Ten Hag, and for most part of his United tenure, nothing was rosy and nothing was good. But the two trophies that he gave, I think that will always be fresh in our memories because we won these two trophies during our worst campaign or during our worst phase, and इसीलिए इन दो ट्रॉफीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. See, I'm someone who will always give other one the credit for his work, and एरिक टेन हैग ने जो काम किया यूनाइटेड को आगे बढ़ाने में, आई थिंक वो सबने देखा है. येस, अ लॉट बैड हैपेंड ड्यूरिंग दिस, द फॉल आउट विद द प्लेयर्स, हिम अगेंस्ट द मीडिया, हिम अगेंस्ट आपके यहाँ पर द राइवल्स एज वेल. और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस गेव अस a lot of confidence when he came out with all guns blazing and said eras come to an end. But sadly, that era of Eric Ten Hag could never get started, and now that he's gone, that famous quote of his will always, I would say, haunt him. And wherever he'll go, that first press conference will always be the identity of Eric Ten Hag. Not the trophies, not what he did at Ajax, not what he did at United, but that first press conference, because he came out and challenged two of the biggest managers in modern football, and he talked about them. Eventually, one of them is not here anymore. He has taken an early leave from footballing world. But you talk about Eric Ten Hag, I think he'll get a job. He's a decent manager. And see, जो कोई यहाँ से जाता है, जो कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाता है, वो अच्छा ही करता है. Not the first time we'll see or we'll notice any other person doing his job and in a better way at some other place, at some other club. But Eric Ten Hag is a decent manager. Eric Ten Hag might be very successful at some other club, but not at United, because some things are not just meant to be. एंड एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा मैं कि आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, आपने मेरे कुछ लाइव स्ट्रीम्स देखे होंगे, एंड आई वाज टू क्रिटिकल ऑफ एरिक टेन हैग, एंड द रीजन वाज एवरीबॉडी हैड हाई होप्स, स्पेशली मी, बिकॉज आई वाज रूटिंग फॉर हिम. मतलब मैं जब पोचेटिनो और एरिक टेन हैग के लिंक्स आ रहे थे, तो आई वाज ऑल एरिक टेन हैग इन. एंड मैं लड़ा हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से और सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है मैंने यहाँ पर अपने पेज पे कि वाई एरिक टेन हैग शुड बी आवर मैनेजर. एंड व्हेन ऑल दिस हैपेंड ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि यार दिस वाज नॉट सपोज टू टर्न आउट टू बी जैसा हुआ है. बट यहाँ पर नया नाम निकल कर आया है रूबन अमोरिम का, एंड इस चीज़ को यहाँ पर मेरे हिसाब से फाइनलाइज ही कर दिया एक तरीके से, और बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ है. बिकॉज इसको फाइनलाइज किया आपके डेविड ऑनस्टीन ने, लॉरी विटवेल ने, एडम क्राफ्टन ने इस चीज़ पर रिपोर्ट किया था. एंड रूबन अमोरिम इज द प्रोबेबल कैंडिडेट, इज द प्रोबेबल नेम who's going to be the next Manchester United manager. United is ready to pay the 10 million release clause जो Sporting को उनको पे करना पड़ेगा. He's a counter-attacking manager, and all this while we were having Eric Ten Hag, we had this obsession of playing perfect football. We had this obsession of playing tiki-taka football, a possession-based football, build up from the back and this and that. बट हम इतने सब कुछ में ना ये चीज़ भूल गए कि हर क्लब की एक अपनी आइडेंटिटी होती है. हर क्लब का यहाँ पर एक आइडियोलॉजी होती है, एक फिलॉसफी होती है, और वो क्लब चाहे कितना भी मॉडर्नाइज होने की कोशिश करे या फिर कितना भी दूसरी चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करे, वो कभी भी अपने रूट से पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकता, या उसको अलग नहीं होना चाहिए. एंड वो चीज़ यूनाइटेड और यूनाइटेड का फैन बेस भूल चुका था. काउंटर अटैकिंग इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. फॉर एवरी सक्सेस दैट वी हैव टेस्टेड ओवर द ईयर्स, वो सबका
जो एक सूत्रधार था वो था यहाँ पर आपका काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. मे बी फॉर सम ऑफ द पीपल इट्स नॉट द राइट वे टू प्ले फुटबॉल, बट देर इज नो पर्टिकुलर वे टू प्ले फुटबॉल. Whatever way makes you successful, that is the absolute best way for your club. Things that works for Man City doesn't work for other clubs, especially for us, because we don't have players of Man City's caliber. We don't have the manager to match the Man City's standard, and most importantly, we don't have the history to play like Man City. हर क्लब का एक अपनी अपब्रिंगिंग होती है. यू लुक एट ला मासिया, yes they are playing ईगन pressing football, but at the same time they are also playing tiki taka football. They haven't purely given up on their style of play. उन्होंने अडेप्ट किया लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया उस चीज को. राइट, यू लुक एट रियल मैड्रिड, दे आर प्योर काउंटर अटैकिंग टीम एंड दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल. बिकॉज ये जो ग्रेट क्लब्स होते हैं ना, ये कभी भी अपनी फिलोसफी गिव अप नहीं करते, कभी भी अपनी आइडियोलॉजी गिव अप नहीं करते. ना रूबन अमोरिम कम्स इन, ही प्लेज विद 3 defensive setup and then he'll use 2 wing backs as well. So do we have the players to survive or to be better under Ruben Amorim? I think we do have players who can do really well. Players like Bruno Fernandes, who will be licking his lips right now, not for a longer time because there will be decisions जो कि शायद लेने पड़ जाए हमें अगले सीजन में जाते हैं, if we want to have a better budget. Then you have Garnacho, then you have Amad Diallo, who likes to play in pocket of spaces. Also you have Mason Mount as well. अगर हम देखें, मेसन माउंट का बेस्ट आया था टूकल के अंडर, एंड टूकल इज अ काउंटर अटैकिंग मैनेजर. देन आप देखोगे यहाँ पर लीचा इज देयर, आपके लेनी योरो इज देयर, आपके पास मथाइस ज़िलिट इज देयर, एंड ऑल दीज प्लेयर्स विल शाइन अंडर रूबन अमोरिम. दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज. बट पता तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इस पूरे रूबन अमोरिम के अपॉइंटमेंट से, या फिर जो हाइप अराउंड रूबन अमोरिम है? 3 साल पहले सेम हाइप एरिक टेन हैग के अराउंड थी. 3 साल पहले सेम चीजें एरिक टेन हैग के बारे में कही गई थी. 3 साल पहले यहाँ पर सेम जो रिकॉर्ड्स थे वो एरिक टेन हैग के फेवर में थे. दैट ही वाज विनिंग द लीग एट आईएक्स, ही वाज विनिंग द कप कॉम्पिटिशंस एट आईएक्स, ही वाज cruise passing against every other opponent, he was having a decent performance in the Champions League as well. He made players play better football जो कि बाकी क्लब्स में नहीं कर रहे थे. And then ultimately when he arrived at United, पहले 2 मैचेस वर ट्रॉमेटिक, बट उसके बाद हमने सीजन को संभाला, हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर. एंड यू नो व्हाट, इफ रूबन अमोरिम अराइव्स, आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम रूबन अमोरिम. एंड द रीजन इज कि वो चेंज ऑफ वाइब आ जाती है, वो चेंज ऑफ एटमोसफियर आ जाता है, वो चेंज ऑफ एक तरीके से मैं बोलूंगा यहाँ पर फिलोसफी आती है. और जब कोई नया मैनेजर आता है तो अपनी फिलोसफी लेकर आता है. बट उसके बाद ये प्लेयर्स जो इतने साल से हमारे क्लब को बर्बाद करते चले आ रहे हैं, ये प्लेयर्स अपने असली रंग दिखाने शुरू करते हैं. If United wants to be successful, they have to get rid of Marcus Rashford. If you think that this is an agenda, yes, this is an agenda. But Marcus Rashford doesn't deserve to be a part of United's future. The guy has got sacked 5 managers. मतलब आप सोच कर देखो यार. He was part of LVG setup. चलो, that was his breakthrough year. उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा. But apart from that LVG वाला आप टेन्योर देखोगे, जोसे मोरिन्यो, one of the reason why Jose Mourinho was sacked was Marcus Rashford and Luke Shaw. You know, Paul Pogba though was there, but Marcus Rashford and Luke Shaw were there. Then came Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer got sacked, and the players who were not performing for him was Marcus Rashford and Luke Shaw. Then came Ranić, and the players who were not performing for him were Marcus Rashford and Luke Shaw. Then came Erik ten Hag. The players who were not performing for him or who were not even available for team selections are Marcus Rashford and Luke Shaw. How everybody can see this, and yet the Mancunians could not see this. I cannot understand the fact that ये फॉरेन प्लेयर्स के पीछे पड़े रहते हैं, ये ब्रूनो को गाली देंगे, ये बाकी प्लेयर्स को गाली देंगे, but they will never ever utter a word against Marcus Rashford. Rashford is his 9th season and he's still not a leader. How am I supposed to believe that Marcus Rashford is going to improve the club? How am I supposed to believe that Marcus Rashford is going to be the match winner for us or the season winner for us? Please don't come up with the numbers कि भाई उसने टेन हैग के पहले सीजन में इतने नंबर्स प्रोड्यूस किए थे, उसके बाद अगले सीजन में क्या हुआ, या उसके बाद इस सीजन में क्या हुआ. जितना बैक एरिक टेन हैग ने मार्कस रैशफोर्ड को किया है, अगर उसका 50% भी रिटर्न यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड एरिक टेन हैग को दे देते, तो जितना हमने एक्सजी क्रिएट करने के बावजूद यहाँ पर बर्बाद किया है, जितने बड़े चांसेस हमने बर्बाद किए हैं, और जो हालत अभी हमारे क्लब की है, अभी हम उस पोजीशन से बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे होते. यू अंडरस्टैंड दिस राइट?
ये जो अभी एक विशियस साइकिल वापस से शुरू होने वाली है ना, दिस विल नेवर एंड बिकॉज सी आप एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को हटाते हो, लेकिन आप यहाँ पर प्रॉब्लम जो एंटायर आपकी प्रॉब्लम है उससे आप यहाँ पर पार नहीं पाना चाहते. एंड मार्कस रैशफोर्ड, लूक शॉ एंड इवन फॉर दैट मैटर में कुछ प्लेयर्स के ऊपर डिसीजन लेने पड़ेंगे. द लाइक्स ऑफ लिंडलॉफ, द लाइक्स ऑफ लूक शॉ, द लाइक्स ऑफ टाइल मलासिया, द लाइक्स ऑफ हैरी मैग्वायर एज वेल. एंड फॉर दैट मैटर अगर लेट्स से कि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए कोई अच्छा ऑफर आता है एक अच्छे रीजनेबल प्राइस के ऊपर, तो शायद हमें ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर भी डिसीजन लेना पड़ जाए. कल सबने यहाँ पर एरिक टेन हैग को थैंक यू बोला है. एंड दो प्लेयर्स ऐसे हैं हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स बन चुके हैं. उन्होंने बहुत ही अजीब सा यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट डाला एंड सोशल मीडिया पोस्ट डाला विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कि अगर मैं बात करूँ जेडन सैंचो का, एवरीबडी न्यू दैट जेडन सैंचो इज अ शेमलेस ब्रैट. Jadon Sancho is a pathetic person, is a pathetic individual. He literally posted an emoji of waving goodbye with a bald head person, and that clearly shows the hatred that he has in his heart for the manager. See, once he's gone, right? I'm not going to sit here and use derogatory terms about Erik ten Hag because I was criticizing him because he was managing our club. Once, up now he's not part of the club anymore. He's not a bad person. He called out Jadon Sancho for his bad habits. He called out Jadon Sancho for not being a professional. And if that things have hurt him, तो फिर he doesn't want to work hard. He's not the right person. But the one person जिससे मैं बहुत ज़्यादा disappointed हूँ कल के उस Instagram post से, Twitter post से, that is David De Gea. I never expected David De Gea to react like this. He is a grown ass man. He is a legend of Manchester United, one of the legends of Premier League as well. Him coming out on social media and posting such utter nonsense is absolute disgrace. I know कि आप जो चाहते थे नया कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला, टेन हैग ने यहाँ पर आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. आपको लोअर वेजेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला गया. बट यार यू आर one of the players who led the team for so many years. You are part of United's history. Not so rich, but still a good part of United's history. And you coming out on social media and doing this, I don't think that was needed. Everybody knew कि आपके साथ गलत हुआ है. Everybody understands your pain. But एक इतना बड़ा प्लेयर आकर अगर इस तरीके से पोस्ट करेगा तो फिर जेडन सैंचो जैसे प्लेयर में और डेविड डिया में क्या अंतर रह जाएगा. अब मुझे पता है आप लोग पूछोगे कि मोक भाई देन व्हाट अबाउट रूड वेन निस्टेलरॉय, व्हाट अबाउट रेने हैक, इनका क्या होगा. देखो पहली बात तो ये है कि अभी तक रूबन अमोरिम का जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म नहीं हुआ है. 10 मिलियन का रिलीज क्लॉज यूनाइटेड पे करने को तैयार है, बट क्या स्पोर्टिंग लिस्बन यहाँ पर जाने देगी और क्या रूबन अमोरिम बीच सीजन में यहाँ पर चार्ज लेने को तैयार है. बिकॉज ही इज इन चैंपियंस लीग राइट नाउ. यूनाइटेड आर नो वेयर देयर एट द स्टैंडर्ड अभी, एंड ही इज सिटिंग ऑन द पोडियम राइट नाउ. मतलब अगर उसकी फ्रेंच आपकी पोर्चुगीज लीग की बात की जाए तो वो टॉप पे बैठा हुआ है. व्हाई वुड ही वांट टू कम, बट देन अगेन इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. नो मैटर हाउ बैड वी आर, बट वी स्टिल कैच आई बॉल्स. और यही सीन है. बट आई स्टिल फील रेने हैक एंड रूड वेन निस्टेलरॉय विल बी पार्ट ऑफ द बैकरूम स्टाफ बिकॉज उनको लाया गया था. मे बी वहाँ पर उस टाइम पे कमिट किया गया कि इफ एरिक टेन हैग इज सैक्ड मिड सीजन देन रूड वेन निस्टेलरॉय को यहाँ पर मौका दिया जाएगा. बट आई स्टिल फील रूड बीइंग पार्ट ऑफ आवर history, our culture, he was the player as well, or he was a fantastic player. I think Ruud would want to work with the new manager and want to put back us on the podium या फिर on a place जहाँ पर हम थोड़े relevant हों, because अभी तो हम highly relevant हो गए हैं. And मुझे यही लगता है कि रेने हैक और रूड वेन निस्टेलरॉय जाएंगे नहीं कहीं. बट जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इनको बना दिया जाएगा मैनेजर यहाँ पर, केयर टेकर मैनेजर या इंटरिम मैनेजर, वो भी नहीं देखने को मिलेगा. आई फील अगर इंटरनेशनल ब्रेक तक यहाँ पर रूड वेन निस्टेलरॉय आपको मैनेज करते देखेंगे, लेकिन पोस्ट द इंटरनेशनल ब्रेक जो नवंबर में आने वाला है उसके बाद आपको रूबन अमोरिम दिख सकते हैं. अभी इस पे यहाँ पर कोई कंक्लूसिव हमारे पास और न्यूज़ नहीं आई है. बट एज थिंग स्टैंड्स रूबन अमोरिम इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, ऑफ हिम, बट आई फील द होल ऑफ द यूनाइटेड फैन बेस नीड टू रेज देयर वॉइस. You have for years wanted the manager to be gone. Now let's voice our opinion. Now let's stand together and demand कि भाई रैशफोर्ड, लूक शॉ, इन जैसे प्लेयर्स को क्लब से निकाला जाए. आई डोंट नो आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, बट आई विल बी सिटिंग हियर एवरी वीक एंड डिमांडिंग द सेम. Even if Marcus Rashford end up performing from now on, I still believe that it's a new manager bounce because every time this has happened, जब हमने जोसे सैक किया था, ओले के अंडर ही started performing. जब हमने ओले सैक किया and he was at it absolute worst,
10 egg लेकर आए, he started performing, and if this thing again happens, then we know it's a pattern. We know it's a pattern, right? तो देखते हैं क्या होता है. बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है, एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रूबन अमोरिम, व्हाट्स हिज स्टाइल ऑफ प्ले, वो हम बनाएंगे आपके लिए, तो वो देखना मत भूलिएगा. बट आज के लिए इतना ही. 94 के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं. आज धनतेरस है, सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिवाली आने वाली है और दिवाली का आपको टारगेट पता है, मेरा 95K का था, वैसे 100K का था बट हम नहीं कर पाए. बट मैं छोटा सा आपसे धनतेरस का एक तोहफा अगर मांगूं तो आप मुझे देंगे क्या? मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ी तादाद में सब्सक्राइब करें, और हम यहाँ पर दिवाली वाले दिन साथ में बैठकर 95K की सेलिब्रेशन करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस. मिलता हूं मैं आपसे बैलेंडोर वाली वीडियो के साथ, मोहक अनस्क्रिप्टेड पे. उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ मेरे ओपिनियंस हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ. आई होप आप लोगों को वो ओपिनियंस सेंसिबल लगे, या फिर अगर नहीं भी लगे तो आप उनसे अपने काउंटर पॉइंट जो दोगे वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में रखोगे. बाकी ध्यान रखिए अपना, आपके पूरे परिवार को, और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. लक्ष्मी जी आपके घर पधारे और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दें. इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. मिलता हूँ अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय. टेक केयर.